Hello students, today we learn about polyhalogen compounds. आज हम जानेंगे polyhalogen compounds क्या हैं और उनके क्या uses हैं and what are their harmful effects on the environment. They are very harmful. Now what are polyhalogen compounds? Those hydrocarbons which have two or more than two halogen atoms present in them. They are called polyhalogen compounds. We'll see some of the important examples of polyhalogen compounds like dichloromethane, trichloromethane, triidomethane, freon, DDT. These are some of the polyhalogen compounds which we will be discussing. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइक्लोरोमीथेन. You know डाइक्लोरोमीथेन, जस्ट इन मीथेन मॉलिक्यूल जब हम दो हाइड्रोजन एटम्स दो क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर देते हैं, वी गेट डाइक्लोरोमीथेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथिलीन क्लोराइड. यू नो इट इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड and it is used in aerosol solvents. We'll see some of the important uses of this. It is present in aerosols and it is very important. Its very important uses is in paint remover. It is used to remove the stains of the paints, but it is very harmful. That is why now the use of this compound as paint remover has been banned. Why? Because it is carcinogenic. ये कैंसर कॉजिंग है. इस वजह से अब इसका यूज जो है इन पेंट रिमूविंग वो बैन कर दिया है. और भी इसके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स. ऑल्दो यू नो इट इज यूज्ड एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस मेडिसिन्स, बट that use is also replaced. It is replaced by other compounds. Why? Because of the very harmful effects of this compound. Another use is it is used in polishing the metals, in making them shine. But this use is also replaced because it affects the central nervous system. Because of its harmful effects, its use is replaced. Then if we are exposed to these compounds, it can affect your hearing. It can affect your eyesight. Because of this, its use is now replaced. It causes dizziness, nausea. Then you can see it causes numbness in your fingers, in your toes of the tips. It causes redness of your hands. These are some of the very harmful effects of this compound. Then it even, अगर long duration तक आप expose करेंगे इस compound को, it can damage your cornea, causing permanent blindness in humans. That's why the use of this compound is totally banned. Then we come to the another polyhalogen compound, which is trichloromethane, जिसका common name है क्लोरोफॉर्म. आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में. पहले जो है क्लोरोफॉर्म, it was also used as an anesthetic. एनेस्थीसिया जब ऑपरेशन किया जाता है, पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता था. बट इसका भी यूज जो है अब बैन हो गया. इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, कलरलेस है, वोलेटाइल है, नॉन फ्लेमेबल है, स्वीट इन ओडर है. दीज आर सम ऑफ द वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड. बट एंड इट डिसॉल्व्स द फैट्स, it dissolves alcohols, iodine, many other compounds it dissolves. It acts as a solvent for these compounds. These are the uses of chloroform. But there are very harmful effects. Then it is also used. Another important use is it is used to manufacture this freon called R22. It is very useful. Initially, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये anesthetic एजेंट यूज होता था, मतलब पेशेंट्स को सर्जरी में एनेस्थीसिया देने के लिए ये यूज किया जाता था. लेकिन नाउ इट्स यूज इज बैन्ड. क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है ये ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स अ वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्जीन. दैट इज व्हाई इट्स यूज इज नाउ बैन्ड. एंड इट ऑल्सो इफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. It causes dizziness, nausea, lightheadedness, headache. These are the symptoms. अगर हम ज़्यादा देर के लिए exposed रहेंगे क्लोरोफॉर्म से, तो we'll experience these symptoms. It can even cause the damage of the liver, क्योंकि ये phosgene gas
लिवर में जब ये ज्यादा देर रहता है तो ये मेटाबोलाइज होके फॉस्फीन गैस जो एक पॉइजनस गैस है, we'll study about that gas in detail later here only in this topic. So that is why the use of chloroform, it has been banned, it has been replaced. Phosgene gas is COCl2. This is the reaction, how chloroform reacts with oxygen in presence of light to form the phosgene gas. This is the reaction involved. इसीलिए जो है क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल्स होती हैं जिनमें ये स्टोर किया जाता है, दे आर डार्क कलर्ड बॉटल्स, ताकि लाइट की कांटेक्ट में ना आ सके, और इन बॉटल्स को पूरा ब्रिम तक फिल करके रखते हैं, सो दैट देयर इज नो स्पेस जहाँ पे ऑक्सीजन आ सके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये डेडली गैस फॉस्जीन गैस बना सके. अब दिस इज द फॉस्जीन गैस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्जीन, COCl2. एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्जीन गैस. और इस फॉस्जीन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, इट हैज द स्मेल ऑफ कट है, फ्रेशली कट है. इफ यू आर फेमिलियर विद दिस स्मेल यू कैन आइडेंटिफाई कि जो आप क्लोरोफॉर्म जिसके साथ काम कर रहे हो, अगर उसमें फ्रेशली कट है की स्मेल आती है, दैट मीन्स यू नीड टू सी द डॉक्टर. दैट मीन्स फॉस्जीन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू फॉस्जीन, जो एक डेडली गैस है, पॉइजनस गैस है. आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर वर्किंग विद क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी, राइट? दैट्स व्हाई द यूज ऑफ दिस वाज बैंड. देन phosgene, it is used as a chemical warfare agent. World War I में phosgene गैस को chemical warfare में यूज किया गया था. It is so poisonous, so deadly. और क्लोरोफॉर्म क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होके लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जीन में, इसलिए क्लोरोफॉर्म का यूज भी बैन हो गया हुआ है. देन यू कैन सी हाउ क्लोरोफॉर्म इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द फॉस्जीन. नाउ वी हैव द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज आयोडोफॉर्म, ट्राईआयोडोमीथेन. मतलब मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम्स जब 3 आयोडीन से रिप्लेस हो गए, इट फॉर्म्स ट्राईआयोडोमीथेन, जिसका कॉमन नेम है आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म इट हैज गॉट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें आयोडीन है. ये येलो कलर का सॉलिड होता है. यू कैन सी दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ शेप एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म. एंड इट इज अ वोलेटाइल एंड इट हैज वेरी पंजेंट ओडर. इसीलिए जो है इसको एज एंटीसेप्टिक कम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल. इट इज नॉट मच प्रेफर्ड फॉर यूज एज एन एंटीसेप्टिक. अदरवाइज इट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक, क्योंकि ये आयोडीन रिप्लेस करता है, रिलीज करता है, और आयोडीन इज अ गुड एंटीसेप्टिक. देन वील सी दिस इज द स्ट्रक्चर. एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है फ्री आयोडीन की वजह से, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. देन वी कम टू द अनदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. मीथेन के 4 हाइड्रोजन एटम्स जब 4 क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाते हैं, वी गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड. इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल कंपाउंड. इनिशियली तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के बहुत से यूजेस थे. ये ड्राई क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज होता था, स्टेन रिमूवर के लिए यूज होता था, इट वॉज यूज इन डीग्रीजिंग, इट हैड मेनी यूजेस. लेकिन अब पता चल रहा है इट वॉज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, इट वॉज यूज इन दीज एयर कंडीशनर्स ऑल्सो. लेकिन अब जो है इसका यूज भी जो है रिप्लेस हो, because it has also been found to be carcinogenic in nature. एक तो ये फ्रियॉन्स प्रोड्यूस करता है. फ्रियॉन्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड. मोरोवेटिव्स ये है इसके इनिशियल यूजेस जो मैंने आपको बताया, ड्राई क्लीनिंग के लिए, डीग्रीजिंग के लिए, स्पॉट रिमूविंग के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर में इनिशियली ये इन सब चीजों में यूज होता था. अब ये क्यों यूज नहीं होता? यू कैन सी द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है. इट हैज बीन प्रूव्ड टू बी अ कार्सिनोजेन. देन इट डैमेजेस योर लिवर, इट डैमेजेस योर किडनी. अगर आप ज्यादा देर एक्सपोज रहोगे इस कंपाउंड के, इट विल डैमेज योर लिवर एंड योर किडनीज. दैट इज वाई अब इसे ड्राई क्लीनिंग में बिल्कुल यूज नहीं करते हैं. It will cause nausea, lightheadedness, headache, vomiting. All these things you will experience if you are exposed to carbon tetrachloride for long durations. That's why its use is now banned. It causes irritation in your eyes.
because it also stops your heartbeat, affects your heartbeat so much. And sometimes you get unconscious अगर आप ज्यादा देर के लिए इस कंपाउंड से एक्सपोज्ड हो, unconscious हो सकते हो, कोमा में जा सकते हो, and it can even prove to be fatal. That is why it is a very harmful compound and its use is banned. और इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ये ओजोन लेयर डिप्लीट करता है. ओजोन लेयर डिप्लीट करने से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो अर्थ पे आ जाएंगी. दे कॉज स्किन कैंसर, दे डैमेज योर आईज. सो दैट वे इट इज नाउ प्रूव टू बी वेरी वेरी हार्मफुल. दैट्स व्हाई इट्स यूज इज बैड. देन वील सी द नेक्स्ट कंपाउंड वी हैव. नेक्स्ट वी हैव द फ्रियोन्स. Freons are the chlorofluorocarbons. This is dichloro-difluoromethane. This is trichloro-trifluoroethane. Right? These are examples of the freons. Freons are used as refrigerants. They are non-toxic, non-corrosive in nature, easily liquefiable gases. They are readily used as refrigerants. But again, their use is also now being banned. ये तो है preparation of freons from carbon tetrachloride जो हम स्वात्स रिएक्शन से करते हैं on treatment with antimony fluoride. ये एक नेम रिएक्शन है which is called Swartz reaction. And these are some of the important uses as I've told you. Refrigerant में, air conditioning में, aerosols में it is used, right? Then it is also used. However, Freon 12, now its use is also banned. इसका यूज भी अब बैन हो चुका है. क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है which damages the ozone layer. With the result अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आएंगी, स्किन कैंसर कॉज करेंगी, आई डैमेज करेंगी. दैट इज व्हाई यूज ऑफ फ्रियॉन्स इज ऑल्सो नॉट encouraged. It is discouraged. Then we come to the next compound, which is DDT. That is dichloro diphenyl trichloroethane. This is DDT. Chemical name of DDT. अब ये जो DDT है, सबसे पहले इसके लिए पॉल म्यूलर को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि डीडीटी जो है ये इंसेक्ट्स को किल करता है. वो इंसेक्ट्स जो मलेरिया, टाइफस जैसी डिजीजेस को फैलाते हैं. इस वजह से जो डीडीटी है इट वाज फाउंड टू बी वेरी यूजफुल बिकॉज इट वाज किलिंग दीज इंसेक्ट्स. बट अब जो है ऐसा देखा गया है कि कई इंसेक्ट्स ने जो है दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू इट. After being exposed to it, they become resistant to it. They are not affected by it. They are not killed by it. And इसके भी harmful effects देखे गए हैं. Water bodies में जब ये आता है तो many fishes they are killed because of this compound. So thus it has been found to harm the birds also क्योंकि इनके जो eggshells हैं वो thinning कर देता है उसकी, जिससे इन birds की population affect हुई है. So these are the harmful effects of DDT. जिसकी वजह से कई यूरोपियन कंट्रीज में ये टोटली बैंड है. बट स्टिल ऑन इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड स्टिल DDT इज बीइंग यूज्ड ऑल्दो इट इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. क्यों? क्योंकि ये बॉडी टिश्यूज में फैट टिश्यूज जो होते हैं ना उसमें ही स्टोर हो जाता है और उसका बड़ा स्लो मेटाबॉलिज्म होता है. उससे क्या होता है फूड चेन में जो हायर मेंबर्स होते हैं ना उनमें इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो है इसका यूज जो है ज्यादातर बैन किया गया. सो स्टूडेंट्स वी हैव सीन दैट दीज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स ऑल्दो दे आर यूजफुल बट नाउ वी सी मोस्ट ऑफ देम दे आर बैन क्योंकि इनके यूजेस तो हैं बट इनके हार्मफुल इफेक्ट्स इतने डेडली हैं, डेंजरस हैं. And it is very important for you to know these because if you are working with them in the laboratory, you have to be very, very cautious so that you do not get damaged by them. I hope you enjoyed today's lesson, right? So, thank you.